Hello, Assalamualaikum. Uh, okay, friends, today we are going to discuss exploring leadership and discussing the chapter number 4. The title is Understanding Yourself. And here is in chapter outline. The first we discuss about the development of self for the leadership and know the strength and weakness, passion, talent, and how we build our self-esteem and confidence. And then second part is about the individual value, belief, ethics, and strong character. And third one is personal style preference. Personal style preferences, the psychological type and how to approach and different approaches of the learning. And the objective behind to study all these is to know about yourself, know about the strength and weakness, doing the yourself SWOT analysis, and how you will be see yourself, how you build up your self-esteem, self-awareness. That is very important. And then assessment of your personality type. We have some psychological type, MBTI movement, and 16 type of personality. The ocean form, introvert, some are extrovert. So which type of personality in which kind of learning are better for you? So how self-confidence is built up, how self-esteem is built up, and then from this book, from this chapter, we have some additional reading as well. From the book, you will go for the reading the four temperament, the 16 personality type, and leading with the soul, written by the Joseph. And some other relevant movies are there, like Global Ethics, everything is illuminated. This one is movie and Finding Forrester that was very effectful, influencing a talented writer. William Forrester described his value, and Mona Lisa's smile, and Motorcycle Diary, which represents the Che Guevara, how they lead the Quebec Revolution, and then the Spanish Flesh. So these are the relevant to the topic. And now we move on to the slide when we move on to the our book, what the he is trying to say, what author says about exploring the leadership, understanding the self. So here we are. We have these content. We have three outlines are there. We have to cover, and then these are the objectives, strength, weakness, self-esteem, build up the confidence, know your strength, and then personality assessment. And after that, here is our module ATG. First, we have to reflect over one, the self-knowledge. Why the self-knowledge is very necessary for us? Know thyself, know yourself, खुद को जानो. ठीक है, no one can teach you about yourself except you. You are your own best teacher, and you will be betterly improve yourself. You know your mistake. You will keep improving yourself. So take your responsibility and never try to blame on anyone, and improve your character building as well. So you can learn anything that you want to learn if you have developed your keen interest in it, your side. And true understanding comes from your reflection on your experience. So असल इल्म जो आपका आता है, जानना कि जो किसने की आपके अंदर से उठती है, वो तभी होती है जब आपका एक शौक पैदा होता है, कि आपकी ज़ाती दिलचस्पी होती है. लेकिन सब में आपको सबसे पहले कि आप अपने बारे में, यू आर अ मार्वल, यू आर अ यूनिक, यू create yourself a masterpiece, and no one draft you, no one draft you. You will create your own fate, your own destiny. So that makes you differ from the other if you have an attitude to develop yourself. तो ये सेल्फ नॉलेज हो गया. इसी तरह सेल्फ लीडरशिप. Self leadership means leadership is self discovery. You know betterly about yourself, your attributes, and you cannot take credit and never give blame to others as well. That this one is very
useful for you. You cannot say that this one is linked to that my teacher is not supporting me and the society is not supporting me. Motivation is self motivation. Okay, it is from your inner side. It is derived from you. So leadership means self discovery, how you will explore yourself. ठीक है, कोई और जानने से पहले आप खुद को जाने, लेकिन ये जानने में जो है वो सालों सदियों गुजर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो कम्प्लीटली यही है कि किस तरीके से हम अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी पोजीशन लेते हैं और अपनी सेल्फ एस्टीम डेवलप करते हैं। अच्छा जी, इसी के साथ हम अगर हम we move on to the next that self SWOT analysis. SWOT means strength, weakness, opportunity, and the threat. So you have to know about skills, how you can describe all those things, and you know your strength, you know your weakness as well. So when you can identify your personal strength, you will be work for a better change. ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पता होना बेहद ज़रूरी है। और इससे पहले कि पीपल मोस्टली स्पॉट एंड हाईलाइट द वीकनेस, but no one sees your strength as well. But you have to be overcoming your weakness with your strength. And sometimes you will say that you will be make your weakness as an strength as well. But then you have to first highlight and distinguish between what is your strength and what is your weakness. So how you can identify your passion कि ये मेरा passion है और जिसको लेके मैं सारी ज़िंदगी जो है वो वर्क कर सकता हूँ मैं लाइफ की। जब आपको बोर्डम फील ना हो, जब आपको फटीग फील ना हो, जब आप उसको लेके आप एनर्जेटिक हो जाएं, तो इसका मतलब है कि ये आपका पैशन है, ये आपका ड्रीम है, ये आपकी ख्वाहिश लॉन्ग टर्म है। तो लिसन टू योरसेल्फ कि आप अपनी वॉइस देखें कि आपकी इनर वॉइस क्या है, कौन सी चीज़ ज़्यादा आपको हाईली मोटिवेट करती है, जो आपको ज़्यादा अंदर से सेटिस्फाई करती है। नो वॉट थिंग्स यू फाइंड ईजी टू लर्न क्विकली। देखिए, जो आपका पैशन होता है तो उसको सीखने समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आप उससे ही समझ जाते हैं और सीख जाते हैं। स्टडी ऑफ सक्सेस फॉर फ्यू ऑफ एक्सेलेंस। ठीक है, यानी एक्सीलेंस सक्सेस की बात जो कर रहे हैं यहाँ पे, वो आपको पता लग जाता है कि ये जो मेरा पैशन है और मैंने अगर इसी डायरेक्शन में जाना है तो मैं ज़्यादा कामयाब हो सकूँगा। ठीक है, तो आप है ना एक लॉक है उसके पास की कुंजी और आप की ढूंढते रह जाएं और राउंड की लगाते जाएं, तो दरवाज़ा तो कभी नहीं ओपन होगा। तो कामयाबी की कुंजी जो है, इनकी सक्सेस है वो आपके पास ही है। बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच की इज फॉर मी or how I can open that lock, and this one is open from your passion. तो थिंक अबाउट योर पैटर्न ऑफ एक्सीलेंस। आप देखेंगे किसमें आपने बहुत हमेशा से अच्छा किया, तो कोई मुकम्मल बुरा हो ही नहीं सकता। कहीं तो अच्छा होगा, किसी एरिया में तो अच्छा होगा जहाँ वो उसका इंटरेस्ट होगा, जहाँ उसकी परफॉर्मेंस बहुत इफेक्टिव होगी, जहाँ वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम सीख की बात करें तो टैलेंट हम जब कहते हैं तो हर शख्स के पास कोई यूनिक एबिलिटी है, एक टैलेंट है। एंड नो योरसेल्फ वेल कि किस तरह से आप अपने इस टैलेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ के अंदर। और अपनी हर शख्स के पास एक खास किस्म की कैपेबिलिटी है जिससे वो दूसरों को मुनफरद है, अलग है। अगर वो कोई एक चीज़ में बुरा है तो किसी चीज़ में तो अच्छा होगा। हर शख्स के पास एक टैलेंट है, टैलेंट मैनेजमेंट की जाती है, टैलेंट को निखारा जाता है। बिल्कुल इसी के देखिए जो फूल है वो हीरा बन सकता है, लेकिन हर फूल हीरा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही इस तरीके से हर जो बीज है वो दरख्त बन सकता है, लेकिन हर बीज दरख्त नहीं बनता। पोटेंशियल तो मौजूद है मगर उसको तराशा जाता है, उसको संभाला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इंसान के अंदर हर एक के पास कोई ना कोई पोटेंशियल टैलेंट है, बट उसको कितना टेक केयर करते हो, उसको कितना डेवलप करते हो, उसको कितना आप अलाइन करते हो, तो ये आपकी ग्रोथ एंड लर्निंग का सबब बनती है। तो टैलेंट मैनेजमेंट की मैंने जैसे कि आपको कहा ये एचआरएम में भी यूज़ किए जाते हैं ट्रेनिंग की। तो ये जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, उसको किस तरह से मैक्सिमाइजेशन की तरफ लेके जाया जाए। तो आप ज़िंदगी के तजुर्बे से सीखते हैं और आपके पास किस्म का एक पोटेंशियल होता है जो कंसिस्टेंसी के साथ उसमें आप परफॉर्म करते हैं
और वो आपको दूसरों की नुमाया कर देता है। ठीक है, तो ये आपका अपना टैलेंट है, ये आपका अपना स्किल है। ठीक है, तो ये खास किस्म के थॉट है, पैटर्न ऑफ थॉट है, फीलिंग्स ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, जो आपको मुनफरिद करता है लोगों से। लीडिंग फ्रॉम योर टैलेंट एंड स्ट्रेंथ विल कीप योर बकेट फुल। ठीक है जी, तो यानी अपने टैलेंट को बीट करें और अपनी स्ट्रेंथ को अपनी जेब में रखें और आप आगे बढ़ते चले जाएं। इस तरह वीकनेस जो है वो थर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आप उस वीकनेस को टाइमली ठीक कर लें तो फिर वो आपकी कभी भी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जैसे डिसलेक्सिया एक प्रॉब्लम होती है जिसमें लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। यू कांट एबल टू हियर सी स्पीक, बट लोगों ने ये जो नाम आपके सामने इतने बड़े बड़े नाम मेंशन है यहाँ पे, एडिसन है, आइंस्टाइन है, ये तो नाम जानते हैं हम, लेनन हो गया, और ये टॉम क्रूज, पॉपुलर केनन डेविस, ये भी एक हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, डी विंची, पैब्लो पिकासो। तो ये बड़े बड़े नाम, बट इन सबको एक प्रॉब्लम रहा है डिसलेक्सिया का। डिसलेक्सिया मैंने आपको बताया, ये एक लर्निंग डिसऑर्डर होता है जिसमें आपको लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वो आपने तारे ज़मीन पे में यू हैव फाउंड ऑन चाइल्ड करेक्टर, तो वो डिसलेक्सिया को ही रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट इज दैट कि वो अपनी वीकनेस को अगर वो अंडरस्टैंड करे, या आपको तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसको ओवरकम करें, तो ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो ओवरकम हो जाते हैं। तो यू कैन लर्न टू मैनेज योर वीकनेस, नॉट टू डिस्ट्रॉय योर वीकनेस। इफ यू डिस्ट्रॉय योर वीकनेस इट बिकम अ थ्रेटनिंग सिचुएशन फॉर यू। अब बात करते हैं हिस्ट्री पे और कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो अगर आपको खुद अपने आप पर बिलीव नहीं है, आप टैलेंट ग्रोथ होते हैं और अपने फैसले साथी करने की आप में सलाहियत ना हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका लो सेल्फ स्टीम है, आप जो है वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी हैं। तो हाई सेल्फ स्टीम जो होते हैं वो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक सेल्फ इमेज क्रिएट करते हैं, और दे नो व्हाट हू दे आर एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। ठीक है, when no one सी और अंडरस्टैंडिंग विजन, और वो कैरी ऑन करते हैं, तो सेल्फ स्टीम होना, सेल्फ रिस्पेक्ट होना, सेल्फ कॉन्सेप्ट होना, ये बहुत ज़रूरी है। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, लो कॉन्फिडेंस में इट शुड बी इक्विलिब्रियम बिटवीन द लो एंड द ओवर। तो हाई सेल्फ स्टीम डेवलप होनी चाहिए जिसमें आप अपने आप को बेटर कर सकें। अब फाइनली, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ, what makes you the way you are, who you are. So you raise the question by yourself, who you are, आखिर आप कौन हैं? क्या आपके अंदर कोई इनबॉर्न क्वालिटीज हैं? क्या आपके अंदर कुछ जेनेटिक कुछ ऐसा यूनिक एट्रीब्यूट है जो आपको दूसरों से नुमायां करता है? और या आप जिस माशरे में पले बड़े हैं, सोसाइटी में, एजुकेशन सिस्टम से गुजर कर आए हैं, या हालात ने आपको जो कुछ बनाया तो उससे आप नर्चर हुए, ग्रो हुए, या फिर कुछ आपकी सिफात ऐसी हैं कि आप कहेंगे कि मुझे विरसे में, विरासत में, अपने आबा और अजदाद से मिला है, यानी ये मेरी नेचर का पार्ट है। तो ये आपने अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप पहले तो बिलीव क्या रखते हैं, आप नेचर पे, ये नर्चर पे। नेचर से मुराद यहाँ पे है कि जो कुछ भी है वो फितरी है, हेरिटेज है, या फिर आप इस बात पे कि नर्चर है एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, सोसाइटी की वजह से। तो you are defined by your circumstances, what kind of circumstances you have faced, what kind of life experience। देखिए ज़िंदगी सबकी एक जैसी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के हालात एक जैसे नहीं हैं। दूसरी बात, अगर चले हालात भी एक जैसे हों सबके, तो सबके रिएक्शन भी एक जैसे नहीं हैं। ठीक है, हो सकता है पांच लोगों को हम सामने रखते हैं, पांच लोगों को एक जैसी सिचुएशन देते हैं, एक जैसे प्रॉब्लम देते हैं, जैसे हम कहेंगे लाइफ एक्सपीरियंस, मगर तीन लोग, पांचों का जो डिसीजन होगा, रिएक्शन होगा, बिहेवियर होगा, दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, उन सबको एक दूसरे से अलग कर देगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। तो हु यू आर, हु आई एम डिफाइंड बाय माय सर्कमस्टांसेस, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आई हैव फेस्ड, इट मेक्स मी। तो मुझे हालात ने, मुझे मसाइल ने, मुझे प्रॉब्लम ने मुझे बनाया। तो ये सवाल हो सकता है, या आप इनबॉर्न क्वालिटी हैं। तो ये सब हम यहाँ देखते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी एक शख्सियत को बनाते हैं, हमारी एक आइडेंटिटी को बनाते हैं। देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, जो
जो विच रिमेन द कांस्टेंट और जो आपको जो दूसरों से मुनफरिद कर दे। इस तरह से जैसे कि आपके थंब प्रेस हैं तो वो दूसरे से मैच तो नहीं करेंगे, वो आपको क्या शो करेगा, आइडेंटिटी को शो करेगा। तो ये जो कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं वो क्या हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बदलते हैं। इसमें आपका कल्चर है, एथनिसिटी है, एज है, आपके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, आपकी खास कुछ एबिलिटीज़ हैं या कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, या कुछ बहुत ऑर्डर पोजीशन है घर के अंदर, आप लोअर हैं, मिडिल हैं, आप जो है सबसे पहले हैं, सबसे आखिरी हैं, ठीक है, ये मंजिलें हैं। तो ये इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर आपके कांधों पे होती हैं उसी के अकॉर्डिंगली, और एक फैमिली सिस्टम एक ग्रो करता है। इस तरह से स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन कितना आप होल्ड करते हैं, क्या बिलीव करते हैं, आप किसको मानते हैं, कितना मानते हैं, तो आपका सेल्फ बिलीव खुदा के लिए, बिलीव इन गॉड कितना है, स्पिरिचुअलिटी है या मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है या चीज़ें क्या हैं। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी डेवलप करता है। बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी शख्सियत को निखारने में और बनाने में। और विद इन यू इज द कैपेसिटी टू मेक अ डिफरेंस, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो ये सब चीज़ें हमने मेंशन की हैं जो कि आपकी जो है एक आइडेंटिटी को डेवलप करते हैं। अब हम बात करते हैं वैल्यूज, बिलीव, एथिक्स एंड कैरेक्टर। वो तो थी बात आइडेंटिटी की। इसी तरह हर एक शख्स की अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज मतलब कि यहाँ के बाद बस मैंने नहीं जाना, ये मेरी लिमिट है, ये मेरी, मुझे यहाँ से लाइन क्रॉस नहीं करनी, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, ये मेरे लिए ब्यूटीफुल है, ये मेरे लिए अगली है, ये मेरे लिए राइट है, ये मेरे लिए रॉन्ग है। यानी हर शख्स का अपने एक वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है, एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है कि मैं इसको मानूंगा, मैं इसको नहीं मानूंगा, इसको मैं सही कहूँगा, इसको मैं गलत कहूँगा। तो ये जो एक वैल्यू सिस्टम है, एक बिलीफ सिस्टम है, ये आपका आपकी एक एथिक्स, आपका एक करेक्टर बिल्ड करती है, ठीक है। और इसमें आपकी सोशल वैल्यू, इसमें आपकी पॉलिटिकल वैल्यू, इसमें आपका बिलीफ सिस्टम, इसके अंदर आपकी एस्थेटिक थ्योरी, जिसके अंदर आपका सेल्फ बिलीफ, ये सब काम होता है। तो बिलीफ आपके लिए कितना ज़रूरी है, ये आपकी सोच बनाते हैं, ये आपके एक्शंस बनाते हैं। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वाकई आप कुछ नहीं कर सकते। हार से वो है जो हार मान लेते हैं, और नाकाम वो होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। तो एक शख्स अगर साइकोलॉजिकली तौर पर ही पहले ये कह दे कि मैं नहीं कर सकता, तो वाकई वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद का हारा हुआ है। दुनिया उसको क्या हराएगी? जो खुद से हार जाए तो वो दुनिया तो फिर उसको बड़ी आसानी के साथ वो खुद ही कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग बट। तो उसका अपना बिलीफ सिस्टम ही नहीं है। तो ये जो आपके थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, तो अगर क्लियर इंसाइट है तो फिर तो वो बाहर भी वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो अपना वैल्यू सिस्टम बेटर बनाएं, अपने वैल्यू सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, योरसेल्फ अ बेटर वन, एंड प्रॉमिस टू कीप एंड नॉन वायलेंस, यानी कोई अनएथिकल वैल्यूज ना करें, कुछ इमोरल गैर अखलाकी चीज़ें ना करें। तो ये कुछ तो आपका करेक्टर होना चाहिए जो आप शो करें अपनी सोसाइटी को, लोगों को, कि जिसकी वजह से हम कहें कि ये ऑथेंटिक पर्सनालिटी है, ये इस पे कमिट करता है, ये ट्रस्ट कर सकते हैं, ये बड़ी इंटीग्रिटी है इसकी। तो वो ट्रू एंड रियल इन आंसर इन द रियल वर्ल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो मोरालिटी, अखलाकियात आपकी हो गई, राइट एंड रॉन्ग क्या है, सही है गलत, और इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये जो है वो बहुत कम है। ये कुछ पिलर्स हैं, एक ट्रस्ट वर्दिनेस और रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, केयरिंग, सिटीजनशिप, जिससे हम एक अच्छा कैरेक्टर बन सकते हैं। अगर हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, देखिए मार्केट में इस वक्त किसी चीज़ की अगर डिमांड है तो वो है इंसान की, क्योंकि मार्केट में जो सप्लाई ऑफ ह्यूमन है ना वो शॉर्टेज हो गई है, और डिमांड ऑफ ह्यूमन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसलिए आई टोल्ड टू माई स्टूडेंट्स दैट अगर कोई कहता है कि सर मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ बेटा इंसान बन जाओ, क्योंकि इंसान कोई बन नहीं रहा है, और हमें इंसानों की और इंसानियत की ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब इंसान बनने के लिए यानी एक मॉरल कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर देखो, इंसान और जानवर में फर्क यही तो है, जानवर में तमीज़ नहीं है सही और गलत की, लेकिन इंसान को अक्ल कुल भी है। जानवर एनिमल जो है वो अपनी इंस्टिंक्ट्स पे बिलीव मतलब प्ले करता है कि भूख लगी, प्यास लगी, खलिश हो गई उसको, उसकी कुछ डिज़ायर्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन इंसान जो है डिज़ायर्स इमोशन से बालातर होकर सोचता है। उसके अंदर एक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियसनेस है, एक ज़मीर है, एक सेंस ऑफ गिल्ट
गलत को परखने की एक एबिलिटी है। अगर ये ख़त्म कर दी जाए तो फिर वो इंसान ही नहीं है। इसलिए मोरल वैल्यूज कैरेक्टर बिल्डिंग बेहद ज़रूरी है फॉर अ गुड बीइंग। तो यहाँ पे हम यही डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर हम एथिक्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहला पिलर है वो क्या है? ट्रस्ट। ट्रस्ट हमने 10 दफ़ा पढ़ा है, मगर ट्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रस्ट तो अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बाहर से कोई शख्स आया और वो खा के आपका भरोसा तोड़ दे। तो अब आपने कहा कि वो उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तो कैसे कोई भरोसा तोड़ सकता है? मतलब कोई गली से, मोहल्ले से, ट्रेन में जाते हुए नहीं ना। भरोसा जिस पे किया जाएगा वही तो तोड़ेगा। तो भरोसा इर्द गिर्द के लोग ही तोड़ेंगे ना। तो एक और अगर हम बात करें, ट्रस्ट किस चीज़ को कहते हैं, ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? एक ही शख्स वादा करे, उस वादे को पूरा करता रहे, एक शख्स कमिट करे, उस कमिट को पूरा करते रहे, उसके अलावा जो वो वर्ड्स के हैं वही एक्शंस हो उसके, तो बार बार ये डेमोन्स्ट्रेशन मिलता रहेगा हमें, तो हमें ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। यानी ट्रस्ट डेवलप करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो कमिटमेंट है स्ट्रॉन्ग, दूसरा ट्रू टू योर वर्ड, जिसे हम कहते हैं कि वादा खिलाफी यानी नहीं करनी चाहिए, कीप योर प्रॉमिस। और लॉयल होना, लॉयल्टी कैसे गेन की जाती है? कमिटमेंट के साथ। तो जब ये सब फैक्टर्स आपके अंदर मौजूद होंगे, यू विल गेन द ट्रस्ट। तो ट्रस्ट कमाया जाता है, ट्रस्ट जो है वो गेन किया जाता है। ट्रस्ट बाय नहीं किया जाता, ट्रस्ट गेन किया जाता है। उसके लिए फिर एफर्ट्स हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो कैसे गेन करते हैं? इन्वेस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी आपको? इन्वेस्टमेंट आपने अपने कमिटमेंट करने पड़ेंगे, अपनी लॉयल्टी करनी पड़ेगी, अपनी ऑनेस्टी करनी पड़ेगी, अपने प्रॉमिस को कीप करने की एबिलिटी करनी पड़ेगी। तो फिर आप ट्रस्ट गेन कर लेंगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो सेकंड क्या है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट मीन्स यू ट्रीट अदर एज यू विल बी ट्रीटेड बाय योर सेल्फ। यानी आप ये देखें कि मैं खुद अगर हूँगा तो लोग मुझे कैसा ट्रीट करें, तो आप भी लोगों को वैसे ही ट्रीट करें। तो ये जो एक गोल्डन प्रिंसिपल है वो ये है कि आप रिस्पेक्ट उतनी ही दें जितने आप लोगों से डिमांड भी करते हैं। तो लोगों को एडमायर करें, लोगों की बात को एग्री करें, और हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करना आपकी कि आप डिसएग्री कर जाएं और सुने नहीं, ये बहुत गलत है कि पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं सबके। थर्ड क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। You will take your own responsibility. No one comes to you and try to fulfill your dream. तो ख्वाब आप देखें और पूरे कोई और कर दे, ठीक है, विश एंड डिज़ायर आपकी हो और कोई और आपको कंप्लिश करके दे दे, तो नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, आपको अपने एक्शंस की, एक एक एक्शंस के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल फॉर योर एक्शन एंड बीइंग कॉन्शियस। यू विल बी कीप कॉन्शियस कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके आउटकम्स क्या होंगे, ठीक है। इसी तरीके से ठीक है, इस तरह फेयरनेस इज वर्किंग टुवर्ड एन इक्विटेबल आउटकम। फेयरनेस, फेयरनेस ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है? बात यही है कि सर ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एथिकल लीडर बनाना है हमने हमने एक हम अंडरस्टैंडिंग सेल्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट विद द वैल्यू, विद द करेक्टर बिल्डिंग। हम ये बात कर रहे हैं कि हाउ वी डेवलप द करेक्टर। तो जब किसी एक शख्स का किरदार साजी की जाएगी, गुड करेक्टर बनेगा, तो उसके लिए ये 6 पिलर्स हैं जिसको हमने डिस्कस कर रहे हैं। हमने 3 देखे कि ट्रस्ट होना ज़रूरी है, रिस्पेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक लीडर में अगर ना हो तो कौन उसको फॉलो करेगा? लीडरशिप का मतलब हम यहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम उसको एथिकल लीडरशिप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो फेयरनेस की बात करें तो वो फेयर हो। फेयर कौन होता है? जो आई इज इक्वल टू ओ, यानी इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ठीक है। यानी व्हाट डज इट मीन? यानी जितनी आप आपके एक्सपेक्टेशंस हो वैसे ही रिजल्ट हो, जैसी डिज़ायर्स हो। तो ओपन माइंडेड होना चाहिए, लिसन टू ऑल, इक्विटेबल आउटकम होना चाहिए, सबके साथ बराबर का सलूक हो, ठीक है। इसी तरीके से केयरिंग। केयरिंग का मतलब है अवेयरनेस ऑफ बीइंग कंसर्न फॉर ईच पर्सन। आप हर एक के लिए फिक्रमंद हो, ना कि सिर्फ अपने लिए, तो फिर सेल्फिश कहलाएंगे। तो केयर रिक्वायर्स एम्पैथी एंड द काइंडनेस। एम्पैथी मतलब पुट योरसेल्फ इन द अनदर शूज एंड फील द अदर्स पेन एज वेल। एंड देन काइंडनेस, ठीक है। Finally, citizenship and the civic sense. I own the country, I own the state, I own the organization, I am the member of that community, so I have to be careful. तो citizenship होना ज़रूरी है, civic sense होना बेहद ज़रूरी है। These are the 6 pillars
जो कि आपका एक अच्छा कैरेक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने देखा उसको हम एक बार रिपीट कर देते हैं। एक ट्रस्टवर्दी पर्सन होने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? अ पर्सन ऑफ कैरेक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान क्यों बनना चाह रहे हैं हम? एक अच्छा कैरेक्टर लीडर बनना है, तो उसके लिए ट्रस्टवर्दी होना ज़रूरी है। ऑन एज इंटीग्रिटी टू कीप प्रॉमिस, ट्रीट पीपल विद द रिस्पेक्ट। लोगों को के साथ जो है वो आपने बेटरली रिस्पॉन्ड करना है, कर्टियस वे में। ठीक है, इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल जो है वो होना ज़रूरी है, अकाउंटेबल हो अपने इसी तरह फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब है कि जस्टिस का काम करें आप, बिल्कुल अनबायस ना हो। ठीक है, उसके बाद केयरिंग, केयरिंग नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, केयरिंग फॉर द अदर एज वेल। थोड़ा सा सेल्फलेस होना पड़ता है। ठीक है, अपने आप के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ दूसरों के बारे में भी। और एक अच्छा सिटीजन बनना है, यानी अच्छा सिटीजन कौन होता है? जो लॉ अबाइडिंग होता है, कानून को फॉलो करता है, जो कम्युनिटी की सर्विसेज, लोगों के लिए अच्छाई का काम करता है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब हम फाइनली बात करते हैं एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से। तो अगर हम बात करें तो देखें, जो हमारी पर्सनालिटी होती है उसकी कुछ टाइप्स हैं। तो ये हम वी विल डिस्कस आफ्टर द ब्रेक एज वेल। आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।